Hello and welcome to Jurisearch YouTube channel. So IPC is one of your core subject which is covered under your UGC NET syllabus, right? So इस वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ जो कि frequently पूछे गए हैं आपके previous attempt में, right? So do watch this video till the end. तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं. Under Section 65 of IPC, sentence of imprisonment for non-payment of fine shall be limited to. तो आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं एंड यू हैव टू चूज अ करेक्ट ऑप्शन. तो आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं. तो देखिए जो आपका सेक्शन 65 है इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू दी नॉन पेमेंट ऑफ फाइन. तो जो आपका पहला ऑप्शन है वो क्या है आपका 1/2 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड फॉर दी ऑफेंस. नहीं, दिस इज इनकरेक्ट. सेकेंड है आपका 1/3 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड फॉर दी ऑफेंस. ये भी इनकरेक्ट है. थर्ड ऑप्शन क्या है 1/4 of the maximum term of imprisonment fixed for the offense. Yes, this is the correct option. Option number 3 is your correct option, right? क्योंकि section 65 में आपका 1/4 of maximum term दिया गया है. Next question. Under which of the following sections of IPC promoting entry between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony is dealt with? Okay, so यहाँ पे आपको जो दिए गए options हैं, right, like 153, 153A, 153AA या 153B इसमें से correct option है. So you have to choose a correct one. So आइए देखते हैं इसका correct answer क्या है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विच इज सेक्शन 153A, राइट. सो 153A का ये जो हेडिंग है वही सिंपली आप यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करके आपसे पूछ लिया गया है. और अगर मैं चैप्टर की बात करूँ जिस चैप्टर में ये सेक्शन दिया गया है अंडर आईपीसी विच इज योर चैप्टर 8 ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट. आप इसका बेयर एक्ट तो प्लीज इंडेक्स देख के जरूर जाइएगा. और इसी के इसी चैप्टर में देखिए आपका एफ्रे, राइट, अनलॉफुल असेंबली भी दिए गए हैं. तो इनका आप एक बार पनिशमेंट भी जरूर देख के जाएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A instigates B to murder D. B in pursuance of the instigation stabs D. D recovers from the wound. Here A is guilty of. So over here you have to choose the correct option. So the correct answer is option number 1 which is instigating B to commit murder, right. तो ये आपका देखिए एक सेक्शन के इलस्ट्रेशन से उठाया गया है as it is, right. So it is actually taken from section 108 which talks about abater. तो उसी के इलस्ट्रेशन का ये है. तो देखिए इलस्ट्रेशन भी काफ़ी ज़रूरी है आईपीसी के, स्पेशली जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जैसे आपके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, अबेटमेंट है, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, प्राइवेट डिफेंस है एंड जितना भी आपका जनरल एक्सेप्शंस है, राइट. इसके अलावा जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी है तो इनके भी आप इलस्ट्रेशन जरूर देख के जाइएगा. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका इलस्ट्रेशन से ही रिलेटेड लग रहा है. A enters into the house of B with the intention to commit theft. B, along with the other members of his family, surround and attack A with wooden sticks. A, finding his life in danger, fires with pistol, causing death to B. Here A has committed. Whether A has committed no offense as he acted in self-defense. Second is whether A has committed theft. Third is whether A has committed murder or whether A has committed culpable homicide not amounting to murder. So you have to choose the correct option. So the correct answer is option number 3 which is murder. तो A पे वुडन स्टिक से अटैक किया जा रहा था लेकिन A ने सेल्फ डिफेंस में पिस्टल चला दी, right. So A has basically committed the offense of murder because he has caused more harm than necessary for the purpose of self-defense. So the correct option is option number 3. Our next question. In the light of the Criminal Law Amendment Act 2013, which of the following statements is or are correct? Statement 1. The word rape in section 375 IPC has been replaced with sexual assault. Second is rape is now a gender neutral offense.
Third is the amendment has fixed the age for consensual sex as 16 years. Yeah, fourth one, the amendment has fixed the age for consensual sex as 18 years. So you have to choose the correct statement. So आइए देखते हैं एक एक statement. जो आपका first statement है, the word rape in section 375 IPC has been replaced with sexual assault. No, it's incorrect. Second is rape is now a gender neutral offense. This is also incorrect. Now जो आपका क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया था उसने कंसेंशुअल सेक्स की जो एज है इट हैज एक्चुअली फिक्स्ड at 18 years rather than 16 years. So your option 4 is your correct option. Now we have got match of the following question. जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ही कॉलम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? सो ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और हमेशा ही आते हैं. आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग हो गया या क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये हमेशा आपसे पूछे जाते हैं, राइट? सो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आईपीसी, अगर मैं स्पेसिफिकली आईपीसी की बात करूँ तो ज़रूर आप लोग बेयर एक्ट पढ़ के जाइएगा, राइट? इट विल बी वेरी हेल्पफुल. ओके, सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखिए आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, act of a child under 7 years of age, communication made in good faith and act causing slight harm के correct sections बतानी है, right? And this is completely a direct question. Okay, so you can also pause this video and try to choose the correct option. So आइए जानते हैं इसका correct answer क्या है. तो देखिए solitary confinement आपका section 73 में दिया गया है. Act of a child under 7 years of age ये आपका section 82 में है, right? Communication made in good faith ये आपका section 93 में है और slight harm का section 95 में दिया गया है. So according to it, the correct option is option number 1. Next question, that which of the following statement or statements is or are correct? So over here we have got 5 statements. एक एक statement यहाँ पे आपको देखना है and accordingly correct statements आपको mark करना है, right? So please try to guess the correct answer. So let's see each statement one by one. जो आपका statement A है, the offense of sedition is defined under section 124A of IPC. This is correct. Option B, the Supreme Court in Kedarnath Singh versus State of Bihar held that section 124A IPC is not unconstitutional. Right? This is also correct. Third, the statement C is State NCT of Delhi versus Navjot Sadhu Afsan Guru is a case related to sedition. No. So ये वाला जो केस है नवजोत साधु, ये आपका पार्लियामेंट्री अटैक से रिलेटेड केस था. ये आपका 2005 में आया था ये केस, राइट? सो स्टेटमेंट सी इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट डी देख लेते हैं. मोहम्मद आरिफ वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इज आल्सो नोन एज मुंबई टेरर अटैक केस. नो, मोहम्मद आरिफ का जो केस है इट इज पॉपुलरली नोन एज रेड फोर्ट अटैक केस, जो कि आपका 2011 में आया था, राइट? सो आपका स्टेटमेंट सी और डी इज द करेक्ट इनकरेक्ट वन. एक बार हम लोग ई भी देख लेते हैं. Waging or attempt to wage war or abating waging of war against the government of India is an offense under section 121 of IPC. Yes, this is the correct option. So accordingly, आपका statement A, B and E is the correct answer. So option number 3 आपका correct answer है. Now again we have got statement based question. At which of the following statement or statements is or are correct? Right? So before us we have got 5 statements. One by one you have to go through it and choose the correct option. A very important information to share. See, Juris Search Academy is actually offering a mock test, right, which is exclusively made for December 2022 attempt, right? जो attempt अभी आपका होने वाला है. एंड इसमें आपको देखिए 10 फुल लेंथ पेपर मिलेगा, राइट? 10 फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही इंक्लूडेड है और साथ में आपका डिटेल्ड आंसर एनालिसिस है, राइट? एंड इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, राइट, विच इज बेस्ड ऑन द रीसेंट ईयर्स एंड द प्रीवियस ईयर पैटर्न. ठीक है, जो जैसा रिसेंटली आपसे पूछा जा रहा है
तो इस चीज़ का काफ़ी हमने अच्छे से ध्यान रखा है एंड द क्वेश्चंस द आंसर्स दे ऑल आर क्यूरेटेड, दे ऑल आर प्रोवाइडेड बाय आवर यूजीसी नेट जेआरएफ एक्सपर्ट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर गोइंग टू गेट अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, राइट? अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है आपके पास और 24/7 एक्सेस रहेगा मॉक टेस्ट का टू योर मोबाइल एंड योर लैपटॉप. ठीक है, एंड एट योर ओन कन्वीनियंस. सो डू चेक आउट दिस मॉक टेस्ट, राइट? मॉक टेस्ट सीरीज आप लोग ये चेक करिए ऑन द लिंक विच इज गिवन अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ लेट्स सी ईच एंड एवरी स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ए क्या है आपका? The offense of abatement is defined under section 107 of IPC. Yes, this is correct. Statement B है आपका, the essential ingredient of the offense of conspiracy is the agreement to commit an offense. Yes. अगर आप सेक्शन 120A देखेंगे तो वहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैसे डिफाइंड है, दैट देयर शुड बी एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू डू एन इलीगल एक्ट और अ एक्ट बाय द इलीगल मीन्स. सो यस, स्टेटमेंट बी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट सी है आपका, द पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज गिवन अंडर सेक्शन 120 आईपीसी. नहीं, राइट? 120 है ही नहीं आपका आईपीसी में दिया. 120A है, 120B दिया गया है. 120A में आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डिफाइंड है, 120D में उसका पनिशमेंट दिया गया है. सो जो स्टेटमेंट सी है इट इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट डी है आपका, स्टेटमेंट ऑफ तमिलनाडु, राइट, थ्रू सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस CBI versus Nalini is a case related to the offense of abatement. No, this is a case which was related to the criminal conspiracy. So आपका C और D दोनों ही incorrect statement है. Last one is abatement in India of offences committed outside of India is punishable under section 108A IPC. Yes, this is a correct option. I mean correct statement. तो इसके अकॉर्डिंगली देखिए आपका स्टेटमेंट A, B और E are the correct statement and hence option number 3 is your correct answer. Now again we have got match of the following question. जैसा कि आप देख सकते हैं आईपीसी के प्रोविजंस दिए गए हैं एंड यू हैव टू मैच विद द करेक्ट सेक्शंस एज इट इज अरेंज्ड अंडर आईपीसी. तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है. So you can also pause this video and try to choose a correct answer. So since this is your direct question, तो आपका यहाँ पे जो सेक्शन 376A से लेके D तक पूरा सिस्टमैटिकली यहाँ पे अरेंज करना है. तो अगर मैं सेक्शन 376A की बात करूँ तो वहाँ पे आपका पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम दिया गया है. Whereas सेक्शन 376B में आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन है. सेक्शन 376C में है आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी, वेयर एज सेक्शन 376D में आपका गैंग रेप दिया है. सो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जैसा कि आप लिस्ट में देख सकते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है एंड इट इज रिलेटेड टू योर जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर. Very important chapter, very important, including the illustrations as well. तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है. सो ट्राई टू चूज अ करेक्ट ऑप्शन. सो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. तो देखिए सेक्शन 80 में आपका एक्सीडेंट दिया गया है. ठीक है, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट. 82 में है आपका एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years of age. 83 में है चाइल्ड हु इज अबव द 7 years of age. राइट, 7 to 12 years वाले आ जाते हैं 83 में. Whereas 79 में आपका है act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law. So accordingly आपका option number 3 is your correct answer. So these were some frequently asked questions, right? हो सकता है जो यहाँ पे statement based आपने question देखा है वो इस बार match of the following में आ जाए, या match of the following वाला question है वो statement based question में आ जाए, right? सो घूम फिर के यही सब मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में, आई मीन फ्रॉम आईपीसी. सो इट्स बेटर, आई वुड रिकमेंड यू टू जस्ट गो थ्रू द बेयर एक्ट. बेयर एक्ट का इंडेक्स आप ज़रूर देख के जाइएगा, राइट? चाहे वो डेफिनेशन पार्ट है या प्राइवेट डिफेंस है या जनरल एक्सेप्शंस है आपके, राइट? एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच इज बीन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड. सो दिस इज इट. ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है. ये आप लास्ट मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा.
And thank you for watching this video. Do not forget to subscribe Georesearch channel to get the further updates.